So welcome to next class. Let's see EPROMs. What are the EPROMs? Okay, so we have talked about the ROMs, simply ROMs. So okay. Then we talked about the PROM. Okay, so what was the difference between the two? The first difference and the basic difference was that the ROMs are programmed or prefixed by the manufacturer itself, while the PROMs are not fixed or the programmed by the manufacturer. They are given to the company and they program it as per their requirement. Okay, and as per their specific use. If they are using for calculator or they are using for the laptops, there will be different programs for each of them. Okay, so this PROMs provide a flexibility, and this can be programmed by using by blowing the switch. There are three different types of the links possible. Okay, so one is if we want to connect create a one, we need not to do anything because it is already connected. If we do not, and if we want to store zero, we have to allow a large amount of current in that particular cell, and that amount of current can burn the that can link, and the zero is stored because that transistor is no more active. It cannot activate that column line, so that will keep a zero over there. Okay, so the next thing is EPROMs. This E stands for erasable. Okay, so till now there was no option. These two things were same. Okay, once it is written it is fixed, once it is programmed it is fixed. ओके, सो ये जो रोम है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही फिक्स हो जाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिक्स होती है पी रोम। ठीक है, लेकिन दोनों में भी कोई इरेजिंग का ऑप्शन नहीं है। ओके, सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इरेजिंग द डेटा इन एनी ऑफ दीज टू। Okay, so what EROM provides, you can say it's an advancement over the PROM. Okay, so as you can see that PROM is an advancement over the ROM. Okay, so this EPROM is an advancement over the PROMs. What it provides, one more diversity, you can say, or one more function possible is there, that is the erasing the data. An EPROM is an erasable PROM. So what has increased in this type of PROM is this erasable. Unlike an ordinary PROM, an EPROM can be reprogrammed. There is a possibility of reprogramming if an existing program in the memory array is erased first. Okay, so what we can do, we know that we can program a PROM. This we know. Okay, we can program a PROM, but we can program it only when it is possible to program it. Okay, so what we have to do to reprogram it, first we have to erase the stored data. So once we erase the stored data, this can be reprogrammed. Any EPROM uses an NMOSFET array. Okay, so EPROM में चीज फिक्स हो गई, क्या चीज फिक्स हो गई, and EPROM uses an NMOSFET array. Okay, so you know that MOS is NMOS or PMOS. MOSFET is two types, either NMOS or PMOS. Okay. So an EPROM uses an NMOSFET array with an isolated gate structure. Okay, so it has some different structure as well, isolated gate structure. Okay, so gate is isolated. The isolated transistor gate has no electrical connections and can store an electrical charge for indefinite period of time. ठीक है, तो अभी यहाँ पर गेट पर क्या है, कोई कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि एक चार्ज स्टोर कर सकता है ये इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अगर वो थोड़ी देर रुका रहेगा या रखा रहेगा, सो इट विल lose the charge will be there for longer amount of time. The data bits in this type of array are represented by presence or absence of a stored gate charge. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो डेटा बिट का रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके का है कि गेट पर चार्ज है या नहीं है।
ठीक है। सो प्रीवियस बिट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट था और यहाँ पर बिट रिप्रेजेंटेशन क्या है वो डिफरेंट है। यहाँ पर बिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी पर गेट पर किसी ट्रांजिस्टर की गेट पर चार्ज है, so it means it is a 1. If it is charge is not there, it is a 0. Erasure of a bit is a process that removes the gate charge. ठीक है। सो इरेजिंग का यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर हम उसको गेट चार्ज को रिमूव कर दें सारी ट्रांजिस्टर का, तो क्या होगा, वो इरेज हो गया डेटा, यानी कि सब 0 0 होगा। ठीक है। अब हम जिससे प्रोग्रामिंग करना है, तो जिनको जिनको हमें इसको प्रोग्रामिंग करना है, तो हमें क्या करना होगा, जिन जिन गेट पर हम 1 चाहते हैं, जिन जिन सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, हम उन पर क्या करेंगे, उन गेट्स पर चार्ज अप्लाई कर देंगे एंड दे विल बी चार्ज एंड दे विल एक्ट एज 1। ओके। सो इरेजर का मतलब क्या है, इरेजर ऑफ अ डेटा बिट is a process that removes the gate charge. Okay. A typical EPROM is represented in this figure. ठीक है, ये EPROM का सिंपल फिगर दे रखा है बाय a logic diagram. ये सिंपल लॉजिक डायग्राम है उसका. Its operation is representative of that of other typical EPROMs of various size. As the logic symbol shows, the device has 2048 addresses. इसमें तो बहुत सारे एड्रेसेस हैं। ठीक है, 2048 एड्रेस हैं, so it means it is a 11-bit device. Sorry, each with 8 bits. Okay, so ये इनकी लोकेशन कितनी है, आउटपुट बिट्स कितनी है, 8 है। नोटिस दैट द 8 आउटपुट बिट्स आर ट्राई स्टेट। ओके, ट्राई स्टेट का मतलब हो सकता है कि ये ट्राई स्टेट का सिंबल रहता है, या तो यहाँ पर 0 हो सकता है, ट्राई स्टेट अगर आपने पहले पढ़ा हो, या यहाँ पर 1 हो सकता है, या एक थर्ड स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं हाई इम्पीडेंस, जिसे हम हाई जेड करके भी लिखते हैं, हाई इम्पीडेंस स्टेट भी लिखते हैं। ठीक है, ना तो वो 1 होता है और ना वो 0 होता है, दिस आर कॉल्ड द हाई जेड या हाई इम्पीडेंस स्टेट भी बोलते हैं। तो ट्राई स्टेट आउटपुट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। एट टाइम्स ये हाई स्टेट वाला हम कब यूज करते हैं, सपोज के वी आर नॉट यूजिंग दिस चिप, तो हम क्या करते हैं, चिप सेट को डिसेबल कर देंगे, चिप को डिसेबल कर देंगे। जब ये डिसेबल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, बट इट विल बी इन हाई इम्पीडेंस स्टेट। ओके, so this is like you can say the 3 states. Okay, so this is a tri-state outputs. Okay, we have here. Everything is same. The memory address lines are there, output lines are there. Tri-state का meaning आपको पहले से पता होगा. I've just revised it for you. Okay, so यहाँ पर क्या क्या एक दो सिग्नल नए नए से दिख रहे हैं. Chip enable, OE complement. Let's see what are these. To read from the memory, the output enable input. Okay, so this is output enable input must be low. अगर हम इसे रीड करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, OE बार must be low. ठीक है, इसको लो करना होगा तभी ये इसको रीड करने देगा। एंड द पावर डाउन प्रोग्राम इनपुट लो, ये भी लो होना चाहिए अगर हमको इससे डेटा रीड करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम और राइट टू द डिवाइस मीन्स क्या, मान लो अगर हम इस पर राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीन्स इसको डेटा इरेज करके फिर प्रोग्राम करना चाहते हैं। सो अ हाई डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू वीपी, वीपी देख लीजिए कहाँ पर है, ये वीपी है यहाँ पर, पावर सप्लाई कनेक्शन एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं वीपी पर, एंड ओई इज हाई, ओई कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो हाई। तो रीड के लिए ओई कॉम्प्लीमेंट एक्टिव लो है, ठीक है, और अदरवाइज ये हाई है। ठीक है, जब इसको राइट करना चाहते हैं, ओई कॉम्प्लीमेंट इज हाई, the 8 bits to be programmed into a given address are applied to the outputs. ठीक, तो ये प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, हम किस बिट पर क्या डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो हम वहां पर कनेक्ट कर देंगे, जो भी बिट्स हमें स्टोर करनी है। ठीक है, ये एक सिंपल टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया है 2048 by 8 EPROM प्रोग्रामिंग साइकिल का। ठीक है, setup and hold times, two things are very important thing in terms of digital circuits, if you know about them, setup times and the hold time. Okay, so setup time एक तरीके से वो टाइम होता है कि जैसे कि आप कोई क्लॉक की बात कर रहे हैं, या यहाँ पर चलिए देखिए एड्रेस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
एड्रेस पर डिपेंड कर रहा है कि एड्रेस चेंज होने पर ही हमारा आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो सेटअप टाइम को देखिए यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं। सेटअप टाइम वो टाइम है जितनी देर हमें एड्रेस को कम से कम हाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आउटपुट में करस्पॉन्डिंग चेंजेस हो सके। ठीक है, हालांकि इसको यहाँ पर जो मेजर किया गया है वो चिप इनेबल के साथ। ठीक है, तो एड्रेस अवेलेबल और चिप इनेबल, मान लो एड्रेस अवेलेबल हो गया, ठीक है, एड्रेस अवेलेबल हुआ है यहाँ पर, तो चिप को इनेबल करना है। ये जो हमारा सीई इसको हम एक्टिव लो रखते हैं। ठीक है, तो इसको लो रख रहे हैं। So if we keep it low, then there is no problem. Okay, so it will be the reading time. सो सेटअप टाइम नॉर्मली आपकी किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए हो सकता है। जैसे नॉर्मली अगर हम सिंक्रोनस सर्किट्स की बात करते हैं, तो सिंक्रोनस सर्किट्स में क्या होता है, सारा कुछ क्लॉक पर चेंज होता है। सो क्लॉक के आने से पहले जो भी डेटा में चेंजेस होने हैं, इनपुट डेटा में, वो डेटा में चेंजेस पहले हो जाना चाहिए। और वो कितने टाइम पहले हो जाना चाहिए, वो सेटअप टाइम कहलाता है। कि क्लॉक आने से सपोज 10 नैनो सेकंड पहले जो भी इनपुट हाई लो होना है वो हो जाना चाहिए। अगर क्लॉक आने के सपोज 10 सेकंड नैनो सेकंड उसका सेटअप टाइम है, और डेटा में चेंजेस जो है वो क्लॉक आने से 5 सेकंड पहले होते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, मल फंक्शन हो सकता है, वो उसको हो सकता है क्लॉक सही से ट्रिगर ना करे। ठीक है, सो इट हैज टू बी, डेटा हैज टू बी चेंज टू इट्स फाइनल स्टेट बिफोर द क्लॉक कम्स। Okay, so that time data has changed, settled to its final value, and the clock comes. That mandatory time is called the setup time. ठीक है, और होल्ड टाइम क्या होता है कि इतनी देर तक डेटा कम से कम हाई रहना चाहिए क्लॉक आने के बाद, जिससे कि आउटपुट पर जो भी एक्शन होना है वो एक्शन हो जाए, जो भी रिजल्ट होना है उस ऑपरेशन का वो ऑपरेशन हो जाए सक्सेसफुली। तो क्लॉक आने के बाद इतनी देर तक उसे हाई रहना चाहिए कि जिस तरह सपोज के प्रोसेसिंग टाइम उसमें जो लगेगा, जो डिले टाइम या प्रोसेसिंग टाइम लगेगा उस ब्लॉक में, उतनी देर तक डेटा हाई रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उससे पहले ही डेटा लो हो गया, इनपुट डेटा चेंज हो गया और आउटपुट डेटा भी पूरा अवेलेबल नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्लॉक को दूसरा सिग्नल दिखने लगेगा एंड इट विल गिव द रॉन्ग आउटपुट। सो यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये राइट साइकिल के लिए दिखाया गया है। ठीक है, कि हम जब इसको राइट कर रहे हैं तो देखिए इसको यहाँ पर हाई कर दे रहे हैं, तो हाई सिग्नल यहाँ पर अप्लाई करती है, ये राइट के लिए दिखाया गया है। तो हम इसको राइट कर रहे हैं, और जब हम इसे राइट कर रहे हैं सीई, आपको आप देख रहे हैं इसको हाई करना होगा हमें। ठीक है, और ओई इनेबल जो है ये राइट करने के लिए इसको लो रखना है, सॉरी रीड करने के लिए लो रखना है, और राइट करने के लिए इसको हाई करना है। तो ये एड्रेस प्रोग्राम हो गया कि ये एड्रेस अवेलेबल हो गया। ठीक है, और जब इतनी देर के बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पर डेटा आउटपुट अवेलेबल हो गया, डेटा टू बी प्रोग्राम्ड। ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग करना है वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर द 8 बिट्स ऑफ द डेटा टू प्रोग्राम आर गिवन टू आर अप्लाइड टू द आउटपुट्स। द एड्रेस इज सिलेक्टेड ऑन इनपुट्स A0 थ्रो A10। ये आपको पहले पता है, एड्रेस जो है वो इनपुट से सिलेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाई लेवल पल्स इज अप्लाइड टू दिस, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हाई लेवल पल्स यहाँ पर अप्लाइड करनी पड़ेगी। द एड्रेसेस कैन बी प्रोग्राम्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, हमें जरूरी नहीं है कि एक एक करके ही हम पहले 000 को ही प्रोग्राम करें या 001 को करें। इट कैन बी इन एनी ऑर्डर, वी कैन डू द प्रोग्रामिंग। टाइमिंग डायग्राम फॉर प्रोग्रामिंग इज शोन। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो डेटा राइट कर रहे हैं, सो वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर द एड्रेसेस कैन बी प्रोग्राम्ड इन एनी ऑर्डर। ओके, ठीक है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ इरेजेबल पीरोम्स आर द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अच्छा, पीईपी रोम दो तरीके की पॉसिबल है। इन्हें एक ईईपी रोम है और दूसरा एक यूवीईपी रोम होती है। ईईपी रोम एक जो होती है, इसमें क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, इसमें डेटा वी कैन इरेज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल connections. Okay, by using the electrical means applying some currents or voltage, we can erase the data like this. Or
Another is the UV, ultraviolet EPROM, where the erasure of the data is done by the ultraviolet lights. Okay. So UV EPROM is much less used than this EEPROM, because this setup for this UV EPROM is cumbersome, and also this UV EPROM takes more time than the EEPROM. Okay. So, so let's see these two quickly as well here. An electrically erasable PROM, EEPROM की बात करें, can be both erased and programmed with the electrical pulses. ठीक है, हाई लो पल्सेस अप्लाई करें उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं, सिंस क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर दिखा दिया कि हम कैसे इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डायग्राम में दिखाया गया सारे फंक्शंस पर क्या क्या करना है. ओके, डोंट वरी दिस टाइमिंग वैल्यूज. ठीक है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ. ठीक है, since it can be both electrically written into the electrically erased, the EEPROM can be rapidly programmed and erased in circuit for reprogramming. ठीक है, so जल्दी से EEPROM fast होती है. Two types of EEPROMs are floating gate MOS and the metal nitride oxide silicon. So ये दो टाइप की हमारी EEPROMs होती है. ठीक है, EEPROM का आपने बेसिकली आपने एक फर्क EEPROM का आपने जो देखा वो पहले वो यही है, इसमें क्या होता है कि गेट की प्रोग्रामिंग करते हैं एक तरीके से, गेट पे अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज को ही हम चेक करते हैं. ठीक है, if it is charge is available it is programmed, if not it is zero like that. Okay, so यहाँ पे दो टाइप की EEPROMs पॉसिबल है, फ्लोटिंग गेट मॉस होता है, दूसरा मेटल नाइट्राइड ऑक्साइड सिलिकॉन. दिस इज अनदर टाइप ऑफ EEPROM. The application of a voltage on the control gate in the floating gate structure permits the storage and the removal of the charge from the floating gate. ठीक है, ये voltage हम apply कर रहे हैं, it allows the storage of the charge and the removal of the charge from the floating gate. And the another type is UV EPROMs. You can recognize the UV EPROM device by the UV transparent window on the package. The isolated gate in the FAT of an ultraviolet EPROM is floating. यहाँ पर ये देख लीजिए. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग का टाइप है यूवी ट्रांसपेरेंट विंडो हम इसमें होगी. ठीक है, पैकेज पर हमें यूवी ट्रांसपेरेंट विंडो बनानी होगी जिससे कि हम इसको यूवी लाइट डाल सके जहां से. द आइसोलेटेड गेट इन द फैट, जो मॉसफेट है, ठीक है, उसका जो आइसोलेटेड गेट, इसमें क्योंकि आपने देखा ईपी रोम में हम क्या बना रहे हैं, एक आइसोलेटेड गेट तो बना ही रहे हैं. ठीक है, of an ultraviolet EPROM is floating within an oxide. Floating means not connected to anything. ओके, फ्लोटिंग आप लोग जानते होंगे. ठीक है, कोई कोई नोड को हम बोलते हैं, कोई नोड वोल्टेज नोड है वो फ्लोटिंग है अगर वो किसी से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, अगर हम गेट को, अगर आप देखें मॉसफेट को, अगर मैं मॉसफेट बना देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर नीचे हमने इसको कहीं कनेक्ट कर रखा है या ऊपर कहीं कनेक्ट कर रखा है और गेट को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया है, सो दैट विल बी अ फ्लोटिंग वन. अगर सपोज इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको कहीं और दूसरे जगह कनेक्ट कर दिया यहाँ पर. ठीक है, हमने यहाँ पर किसी लिंक से यहाँ कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो बट गेट पर कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये फ्लोटिंग होगा. फ्लोटिंग विद एन ऑक्साइड इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है, ये आप जानते हैं मॉसफेट में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है. द प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव फ्रॉम द फ्लोटिंग गेट. ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसको रिमूव करना है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें जो प्रोग्रामिंग और चार्जिंग होती है वो गेट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से होती है. ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट डालकर हम क्या करते हैं, इसमें जो भी चार्ज स्टोर्ड है उसको रिमूव करना हमारा पर्पस रहता है, वही हमारा इसका इरेजिंग ऑफ द डेटा कहलाती है. Erasure is done by exposure of the memory array chip to high intensity ultraviolet radiation through the UV window on top of the package. तो एक तो ये हो गया कि अगर हम वही चिप, आपने आईसी देखी हो, ये एक आईसी बना रहे हैं तो हमें ऊपर इसको क्या बनाना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए इसमें विंडो भी बनानी पड़ी, इससे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल सके. तो एक मैन्युफैक्चरिंग में भी एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया कि हमें इसको ऐसी बनानी होगी. नॉर्मली वो इंसुलेटेड होती है ब्लैक कलर. ठीक है, सो एक विंडो बनानी है. द पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड ऑन द गेट इज न्यूट्रलाइज्ड आफ्टर सेवरल मिनट्स टू एन आवर ऑफ एक्सपोजर टाइम. जब जो चार्ज गेट पर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रावायलेट. ओके, सो
Okay, so let's stop it here. So this is all about the EEPROMs, UV EEPROMs, and the PROMs and the ROMs. Okay, so if you have any doubt, you can ask anytime. Okay, so let's stop. Thank you.